वो बात क्या बात है अभी Okay, so we have questions for Mukta. Yeah. Somebody is asking, can we know your rank and your score, please? So Let me my tell you rank was something. in हाँ 60. बोल मुझे पहले बोल आगे. No, you continue. Why नहीं, are बोल ना. people asking me? Score I don't even What was your remember, rank and honestly. My rank was in 60. Acha. Okay. So Ask us, there are क्या बोले? people who have 160, people who have more than 200 like rank. So like Yeah. a lots of kind of people. Ma pore assi ma. So yeah, that kind of different kind of people you get in IIT. हर type का rank, हर type का background. So जो tension what is होता है your background? क्यों हो जाता है कि मतलब हाँ? So I have done my BDS. So I have done BDS from NIF Delhi. That's why Oh, Delhi. Sison said to join because I have never experienced like a classroom or something like that, you know, like proper say design coaching or something. So I was like, just come and see. Acha. I'm one of those people who did not prepare for seed. Yeah. Now अरे see, तो we'll have more questions. now. I am muting myself. Now all questions will come to Mukta now. She got at Delhi the last year, you know, and then she didn't able Yeah. to take it. Really? Why? Yeah. क्यों? Because I wanted Bombay. That's why I. Yeah, like ये भी ठीक है. Well, I have two people. नहीं, I have one person in my batch. Archana. She got IDC, interaction design, and she chose IIT Delhi. Okay. तो छोड़ दिया IDC. ये होता है रे आईडीसी का क्या दिक्कत है ना मेन कि वो एकदम स्ट्रीमलाइंड है मतलब तुम अगर घुस गए इंटरेक्शन में तो बस तुमको इंटरेक्शन ही करना है बाकी जो आईआईटी गुवाहाटी वगैरह है यू कैन एक्सप्लोर अदर यू नो पार्ट्स ऑफ द डिजाइन आल्सो दैट रेस्ट्रिक्शन वी हैव हियर That's what I'm also doing. UX भी, product भी, animation भी, transportation भी, सब चल रहा है. One more question for Mukta is that Sukanya is like, did you have science, maths in class 11, 12? Okay, so for me, it's actually different than what you guys are like preparing for right now because I had already decided in like 10th standard that I want to do design. So from that time only, I was like, I don't want to do like physics and all of that. So that's why I took art stream. And my main subject was maths at the time. So that's why I didn't need science background. Like I had science, but I changed it to arts later. Okay. Good. Cool. like what happens now people have a general idea like typical idea of IIT and all like the lifestyle so once you get to know the variety of people are there in IIT you get a bit relaxed कि चलो फिर मैं I can be one of the like part of the you know institute that is good That's right. Acha. One more question we have from Daksh. I should. Hi. very good So I am applying for BDES abhi. I'm in 12th abhi. So can you give some tips on BDES? Mukta. Yeah. yeah Also, after that, I also have like one small doubt after that. Okay, what stream or what college you want for BDS? NID चाहिए and I want in animation. So tips as in like basically NID is more about like they don't want to see. So it's more like out of box as well as they want to see the process. They want to see your thinking. So as Susan already talked about all this, so like they don't want to see how much GK or stuff that you know. It's more about like what you can do with what you have been given. Okay. animation you know like specifically you want to be relaxed with the answer I would tell you to sketch character you know because animation में क्या होता है ना once you are in a finite kind of a zone तुम्हारा visual library जितना rich होगा तुम्हारा imagination उतना vivid होगा ठीक है तो try to fill your visual library visual vocabulary as much as you can cinema देखो ड्राइंग करो कुछ भी करो बट दिमाग में इतना पिक्चर होना चाहिए कि तुमको कुछ भी सीन दे दे या बनाने को बोले या कुछ भी सोचने को बोले या ऑलरेडी हैव अ बिग लाइब्रेरी ऑफ विजुअल्स इन केस ऑफ एनिमेशन स्पेसिफिकली
ठीक है, हाँ, okay. And also focus on storytelling. I believe that animation में जो 3-4 questions, I had a friend who gave animation. The questions were directed to they give you an image and they told you to make a story out of it and write like 100 or 200 what I say. So storytelling is important. Watch nice हाँ, stories, हाँ. read stories, short stories, witty stories, scary stories, whatever. थोड़ा पढ़ो. Storytelling help करेगा. हाँ, ठीक है. Also, for some questions like जैसे एक question था where we were given a time machine का एक drawing छोटा सा and we were told to draw the scene as if we are in 2090. Now I did this with my friends and like everyone drew it, so I had a full idea कि 2090 में ये हो जाएगा, food यहाँ से आएगा, oxygen यहाँ से आएगा, but वो drawing के through obviously मैं दिखा नहीं पा रहा था इतनी चीजें. So could I label it also like in the exam? एनिमेशन में लेवलिंग क्या स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हो क्या तुम? लाइक आर यू टॉकिंग अबाउट नहीं नहीं, बीडेस का तो बैचलर्स दे रहा हूँ ना मैं, तो इट्स जनरल फॉर एवरीवन. It's more about visuals. The more you showcase it rather than writing, the more helpful it will be. And more like you have to use a lot of colors and everything as well to show what you want to depict. So if you're showing emotions, you have to use colors accordingly, right? So that you must have like seen already. So you have Yeah. to like, yeah, be very smart about that also. ठीक है, ठीक है. Okay, thank you. Okay, Sanket. So you Hello. can tell me anytime when you're done with your time limit, because last time this went on for 3.5 hours. So you tell me. Luckily, I'm free today. Tomorrow from like You kind of pulled me into it. Yeah, Asu है क्या इधर? Huh? I'm talking to Mugdha. Asu is here or like not? No. Okay. Do you want me to call him? No, it's all right. Let it be. वो कभी नहीं. Then that will be more 4-5 hours kind of thing happening. But yeah. Yeah. Once we can Hello. you know like meet all the people. Yeah. Yes, Ankit, go ahead. Yeah, we Go can ahead. do a panel next time, Susavan. Like if you have 4-5 people, I don't mind. But I'm ready to host anytime. But तो चाहता हूँ ये लोग को थोड़ा help मिले. Right? Yeah, obviously. Okay, Sanket, let's listen to you. Yes, Sanket. हेलो हाय Hi, Sanket. भैया. अभी देखो जैसे कि अभी 33 या 34 डेज बाकी एग्जाम को, तो हाँ. सब लोग बोलते हैं कि स्पेशली डी सोर्स जो नाम का जो ऐप है आईडीसी का, वो पढ़ो. मतलब आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब डी सोर्स इतना वास्ट है, इतना मटेरियल है वहाँ पे, तो वो पढ़ना जरूरी है क्या? मतलब ऐसे जरूरी है क्या? अच्छा, डी सोर्स में तो सारे प्रोजेक्ट डाल देते लोग. उतना पढ़ के क्या करोगे? स्पेशली आईडीसी वाले बहुत प्रोफेसर है उधर, इसलिए दानिश भैया ने भी बोला था कि डी सोर्स इज अ Requirement होना चाहिए. ठीक है संकेत, लाइक क्या है ना, चीजें इतना वास्ट है. ये चीजें है सीट के पहले वाला वास्ट चीज, सीट के बाद में और भी वास्ट चीजें आने वाला है. तो तुम्हारा कुछ रिक्वायरमेंट होना जरूरी है कि मुझे ये जानना है, क्योंकि एक डिजाइनर हर चीज डिजाइन नहीं कर सकता. मतलब हर चीज में उसका एक्सपर्टीज होगा तो कैसे होगा. तुमको अपना एक ढूंढना है कि यार मेरे को ये पसंद आ रहा है, तो लेट्स डिग डीप इनटू इट. इतना सिंपल है. ओके. I got IIT, that doesn't mean I know everything. ठीक है. ओके. तुम भी मिल जाओगे, तुम it doesn't mean कि you know everything. So बस you just know a little bit of everything and one thing a bit more than that. See, if you have पिछली बार time, you अभी can see. Right. If Okay, he has okay. time, he क्योंकि- can see, but it's more like you need basic knowledge, design related. Then you can see that. Otherwise, you will just get confused. Right. ओके. तुमको लगेगा कि यार कहाँ- 2021 और 2021 के क्वेश्चन में देखो अभी सिंबल्स पूछ लिए थे, वो कैंसर वार्ड वगैरह, वो डी सोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. तो कौन सा ऐसे चीज? कुछ एग्जाम पैटर्न वो सिंबल्स नहीं देखे, कैंसर वार्ड, मैटरनिटी वार्ड, अच्छा हाँ. सिंबल्स, Logos, हाँ. icons. साइनेज वो डी सोर्स में दिए हुए. तो ऐसे कुछ चीजें है क्या जो एग्जाम पैटर्न रिलेटेड है वो डी सोर्स पे अवेलेबल? एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो बस है. तो इसलिए तो ऐसे एक्सरसाइज हम लोगों से भी करवाया जाता है. ठीक है, कि यूज आइकन्स, ट्राई टू मेक आइकन्स. तो वो रिसोर्स में जाता है कभी कभी. तो समथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू टू लुक फॉर, बट डोंट कंफ्यूज थिंग्स. मतलब अगर आइकन देता है तो यू विल ड्रॉ आइकनोग्राफी और लाइक सिंबल्स
more from your experience than from the source. ठीक है, तुम्हारे जिंदगी में अभी तुमने HP का लोगो देखा, डेल का लोगो देखा, ये देखा, वो देखा, बहुत कुछ देखा, तो तुम्हारा जो सेंस ऑफ सिंबल है ना, तुम्हारा जो सेंस ऑफ साइनेज है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, या डी सोर्स बस एडिशनल कुछ है. ठीक है, तो मोर फोकस Okay. मोर ऑन ऑब्जर्वेशन. Okay, got it. Thank you. थैंक यू. Okay, Sukanya. Hi, Mugdha. I wanted to ask you, so you had humanities with maths, so I'm sure you did not struggle a lot with maths ka part and seed ka part A. So like what were Yeah. your initial goals and when did you start preparing and like how was the process for you? Okay, so when I'm saying I took arts, the thing is I took arts just for the scoring part of it because I didn't wanted to like go for any other tuitions and waste my time in that. So that was the main thing. But apart from that, I was reading all science related books because I'm very interested in chemistry and all. So I was reading those books. So I had that knowledge. So for papers and all, you need a certain amount of knowledge in that as well. But apart from that, yeah, I was basically like studying for the design entrances on my own. There are smart people, Danish. I know. Have you ever thought of taking art and not going to tuition? Yeah, that was a Never. big gamble actually, okay? Because once you take one side, you can't do something else. I can't do engineering or something else after that. So that is like if you have like fully planned kind of stream, then it's fine. Otherwise, I won't suggest that for like anyone else. And so So that when I the want campus works. Yes, sir. Yeah, of That course. is- Like you have to have that passion, of course. Then only you can do that. Study basically खुद से ही होता है, you know. Yeah, I wanted to ask you that आपने university भी clear किया था ना? So like how was your approach? Like did you read papers of universal design? Did you like research into materials? It's like two product design papers, you know. That's it. Okay. So is there no different way, like different in product, the way you approach a universal ka paper? Like Because you're it's talking so about any difference in approach for product and universal? no, because you mentioned that dono papers like it's very similar and same. Mm-hmm. So like obviously the way you will like anyone will approach universal should be different, right? Because it's universal. You will keep the user more in mind, and you will like take care of their pain points more in comparison to Right. product project. Mm-hmm. So uska information, like how do you know that? Like did you study about it? Yeah, or you're you- talking about the knowledge. Okay, so universal Yeah. design you can study online. Okay, basically the universal design concept generated from architecture. Okay, is the we are using a smaller portion of the universal design concept in case of product than in case of architecture. Okay, तो आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, डिफरेंट हाइट पीपल, डिफरेंट लाइक चाइल्ड बच्चा भी है, यू नो, लाइक मॉम पेरेंट्स भी है, तो देयर हाइट डिफरेंसेस, देयर वेट, देयर यू नो लाइक लॉट ऑफ, यू हैव टू डिजाइन अ बिल्डिंग फॉर अ लॉट काइंड ऑफ पीपल. तो यूनिवर्सल डिजाइन का कॉन्सेप्ट तुम जब मतलब यू नो ऑनलाइन पे स्टडी करोगे, यू गेट मोर ऑन द आर्किटेक्चर साइड. सो स्टडी दोस, यू गेट द आइडिया कि कुछ चीजों का यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग एन यूनिवर्सल डिजाइनर. ठीक है, तो जस्ट डेवलप योर थॉट यूनिवर्सली. अब वो प्रोडक्ट में यूज करना है कभी कर लेना, अगर तुमको कुछ और क्वेश्चन है कर लेना, बट द थॉट यू आर डेवलपिंग ना बाय स्टडीइंग हाउ यूनिवर्सल डिजाइन वर्क्स, क्योंकि तुमको ज्यादातर आर्किटेक्चर वाला मिलेगा ऑनलाइन पे पक्का. Okay. दैट इज अ Thank you. कॉन्सेप्ट. या I'm sorry to interrupt, but I want to continue with this universal design. I'm applying for the same course, and I have a background of fashion design, and I want to explore adaptive clothing in the universal design. गुड. So That's that good was my enough. motive to apply in universal design. So But you won't be very happy, I'm telling you. I'm sorry to say that, but ultimately when you get to college, you have to study product, because you are there to design a product which can be used universally. Okay. So if you have an idea of adaptive clothing and as such, you have to take it forward after you go to college, because college is
is I don't know how they can align with your idea of adaptive college. Adaptive clothing. But it is good that you have a project in your hand that you can explore later on in college. Okay. Because But don't carry out with this thought कि तुम जाके सिर्फ वही करोगे. तुमको ultimately product ही करना है. हाँ, that's why I chose that I can broaden my horizon in this field. Right. All the assignments will be according to the course, but this can be like your personal project Okay, for so the will portfolio at least. will it be like the more product-based projects from the college? Yes. Yeah. Okay. So Even people who've come to IIT Delhi Hmm. who want to do animation, who want to do visual, all of them have to do the product assignment. It's a core course. उनको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, 3D modeling सीखना पड़ेगा, sketching सीखना पड़ेगा, even if you don't like it. So that is one little drawback, but it's still the process that's important. Like And Mukta for- said, you can take it up like a personal project. But Okay, kind of and for those people who are actually building their UI UX field in terms of universal design, what about that? UI UX बताओ. बताओ नहीं. UI UX में see, since I am doing UI UX, I also believe यहाँ पे आके ना एक चीज क्लियर हो गया कि ये UI UX प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन विजुअल ये सब टर्मिनोलॉजीज है जो हमने बनाई है. It's not like the पत्थर की लकीर. Like a UX designer is not just restricted to apps. As a UX designer, my next project is designing a rickshaw, a transportational vehicle, because UX is about the experience, not just about applications and UIs and all of that. So terminology को side पे रख के, I believe that एक logo बनाने में और एक गाड़ी बनाने में process important. Okay. भले एक छोटा लोगो है, बड़ी गाड़ी हो, process important. Correct. Thank you so much. हाँ जी. You have to get design in broader terms because then only you can see opportunities. Okay. Yes. सीट के पहले इतना डिस्कशन होता है ना, लक्षित आधा डिजाइनर लोग बन ही जाते हैं. अरे यार. ओके, सो मुझे ये पूछना था कि जब पेपर देने के बाद आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो, मेरे को लास्ट टाइम मेरे फादर मेरे साथ गए थे तो सब पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ है, तो क्या बोलूं कि यू डोंट नो कि पेपर कैसा हुआ है. एक्चुअली बुरा होगा तो बुरा नहीं बोल सकते एकदम से, थोड़ा सा होप तो देना होता है. क्या किसको पूछा है? आप में से कोई भी आंसर दे सकता है. क्या बता फिर बताओ. मैंने पूछा कि पेपर देने के बाद आप एग्जाम हॉल से निकले, मतलब लास्ट टाइम मेरे फादर मेरे साथ गए थे तो उन्होंने पूछा था कि पेपर कैसा हुआ है, तो आपने क्या बोला था? आपसे किसी ने अगर पूछा था तो तुमको ना ऐसा फील आएगा कि चलो कंप्लीट तो हुआ, खत्म हुआ, ठीक है. जो स्पीड में तुम काम करते हो ना एग्जाम हॉल में, तुमको सोचने का नहीं आता कि क्या हो रहा है तुम्हारे साइड में. बस तुम जब खत्म होता है तुमको लगता है खत्म हो गया. है ना दिनेश? तो बोलते तुम घर जाके कि सही है, अच्छा ही हो रहा है. मैं तो पापा को बोला फोन करके, पापा जाके सो मेरा नहीं होने वाला, मैं कुछ मार्क का आंसर नहीं करके आया, मेरा तो नहीं होगा. मैं बताता हूँ. मेरी मम्मी को ना सब पता था, पूरा प्रोसेस इनसाइड आउट. तो शी न्यू के मेरे को पार्ट बी में बहुत फटती है. पार्ट ए था क्या है, ठीक है, पार्ट ए तो अच्छा जाएगा, मेरे को पता था. बिना पढ़े 2020 में 50 आया था स्कोर मेरा, जब पार्ट बी दिया भी नहीं था, मतलब छोड़ के आया था. तो आई वेंट इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल. मम्मी वाज लाइक, बेटा पार्ट बी, ठीक है, पार्ट ए हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, ऑल द बेस्ट, जो भी. मैं बाहर आया, मम्मी बोलती कैसा गया, मतलब पार्ट बी बहुत अच्छा गया, पार्ट ए का पता नहीं. आई हैव नो आइडिया, क्योंकि पार्ट ए ऐसा था ना क्या, उसने कि मेरे को याद ही नहीं है क्या मार्क किया था क्या नहीं. सो देयर आर टू थिंग्स. वन, व्हेन यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ना, there will always be a feeling that I could have done better. Yeah. सबको आएगा, सबको. And trust me, you can't. You could not have done better.
तुमने अपना बेस्ट दिया है, वो ना एंग्जाइटी घुसता है अंदर, बस और कुछ नहीं। और दूसरा यही है कि घर वाले ये पूछेंगे, बोलना सीड क्लियर होने से कुछ नहीं होते, इंटरव्यू पोर्टफोलियो बहुत लड़ाई बाकी है, एक सीड ही तो 20% है। मतलब पापा रेडी रहो, बहुत रात जागना है मेरे साथ। हाँ हाँ अभी और डिजाइनर तो अब बन ही गए हैं। मैंने तुम Designer इंटरव्यू तो तक बनेंगे। तुमको ट्रस्ट इंटरव्यू नहीं, ये प्रोसेस है ना। लगेगा, उसके बाद तुम बनोगे डिजाइनर। और ये प्रोसेस ही आधा डिजाइनर बना लेता है यार। हाँ ये जो प्रोसेस है सीड का पूरा कितना लंबा है यार, 8 हाँ। महीना भाई, मजाक है। 8 महीना यार, गैप लग गया पूरा, बट ठीक है। Yeah. So थैंक यू Mehal, I have one last question, please. I बिंदास यार। Until Sushovan is here, I am here. लास्ट टाइम ऐसे ही था, 3-3.5 घंटा चालू होता। हाँ, तो बस एक ये है कि आप लोगों ने मॉक्स दिए थे क्या, मतलब दोनों में से किसी ने भी या दोनों ने हाँ, मॉक्स mocks दिए तो थे, दिए एंड उसको कैसे डील करने का, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि यू नो यू हैव अभी मॉक्स में पार्ट ए में तुम्हारा कुछ आंसर आ रहा है पर उनकी गलत है तो उन्होंने गलत दे दिया, पार्ट ए का स्कोर कम आ गया। पार्ट बी यू डिड गुड एंड समटाइम्स वो लोग जो रिव्यू देते हैं यू डोंट अलाइन विद दैट रिव्यू कि इन्होंने सो एंड सो करने का, पर मेरे को लगता है नहीं जितना है उतना ठीक है। तो हाउ डू यू डील विद ऑल दैट, क्योंकि पार्ट मॉक में स्कोर कम आता है ना तो यू आर ऑल लाइक कि भाई मॉक में ही नहीं क्लियर हो रहा, एग्जाम कैसे होगा। मैं पता है ये मॉक को कैसे ट्रीट किया। I'll come back in 5 minutes. या श्योर गो भाई बुलाया आराम से। मॉक आई डिड मॉक बिकॉज़ आई हैवंट हैव एनफ क्वेश्चंस टू ट्राई मोर। ठीक है, ओके जितना प्रीवियस पेपर था वो तो चलो ठीक है हो गया, अब क्वेश्चन कहाँ से ऑथेंटिक आए, तो बस इसीलिए मॉक दिया था। तो मॉक को ऐसे ट्रीट करो कि यू आर गोइंग टू गेट न्यू एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं कि तुमको कितना स्कोर आ रहा है। तुमको टाइम में खत्म करना है, ये तो पक्का है, क्योंकि टाइम इज वेरी बिग फैक्टर अनलेस यू गेट इट वेरी सीरियस। जो मैं बहुत लास्ट में मेरे को ये आया कि नहीं टाइम भी फैक्ट करता है, बट मॉक इज लाइक तुम अलग अलग क्वेश्चन मिल रहा है, बस इतना, ज्यादा सीरियस नहीं रहना। तू बता मुंडा कुछ, अगर तुझे कुछ आता है तो मुझे बता, नहीं तू कैसे किया। So basically I saw last year papers वो solve किए थे, but मैंने as I said before मैंने कुछ ज़्यादा practice वगैरह की नहीं थी, so I used to do basic sketching every day. Based on that I just saw the mocks, like I went through the question paper basically. I didn't exactly like solve all of that. मैंने बस roughly sketch करके देखा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है idea, ये वो हो सकता है। I didn't like actually sit and solve those papers. So that does save time also. So like you, I also have a design background from set, and when I started out, I also did the same approach. Like question देखती थी, हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा करके देख लिया बस. So और पर अभी all this everybody around me mock कफाल का mock, DQ का mock. Don't listen. Where do you get this money, man? इतना नहीं, दो Don't question listen दो। to people, okay? Just go with what you think मेरे is साथ right तो for हद हो you. गया था, लाइक आई गेव 3 or 4 मॉक्स, तो पहले अच्छा नहीं गया, दो उसके बाद अच्छा गया, आई गॉट कॉन्फिडेंस कि नहीं सही गया, और लास्ट वाला मॉक इतना गंदा गया, आई थॉट कि भाई इतना प्रिपरेशन के फिर क्या हो गया, तो कुछ गंदा हो गया, 30 आया मार्क्स मेरा। छोड़ दो। They're basically designed in that tough kind of way to make you like see कि हाँ ये से hard हो सकते हैं questions and all that. Just go through them. Don't really like, you don't have to like solve each and every question proper time में and all that. Like if you want to practice, you can of course do like any number of mocks you want. 100, 500 भी कर सकते हो, उसमें क्या है, but it's up to you what you need to do, right? Yeah, got it. You have to be very specific कि तुमको मॉक का तुम्हारा मोटिव क्या है। मेरा मोटिव था क्वेश्चन लाना, कितना नया क्वेश्चन, रेलेवेंट टॉपिक में क्वेश्चन, क्योंकि सपोज मैं अभी कोविड, अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया सपोज, तो अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कुछ क्वेश्चन आया तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलना, तो माय अप्रोच वाज टू गेट टाइम लाइक रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड लाइक टाइम के साथ साथ जो भी हुआ है, दैट वाज माय मोटिव। Okay. किसका टाइम होता है। हाँ
अरे बाप, मत दो उतना मॉक, मत दो ये उतना लोग को मॉक, स्टार्टिंग से ही चस्का लग गया मॉक का। मत दो उतना मॉक। मॉक से ज्यादा मार्क्स आता है रे। मॉक्स पे इतना डिपेंडेंट फर्स्टली मत रखो चीजें. Okay, it is just a mock. It is for practice basically, for you to practice some extra questions that have not been asked before or something like that. So that, keep it in that way. Don't like put your marks based on that. हाँ, उतना उतना मार्क्स के बारे में मत सोचो, बट हाँ मॉक्स से ज्यादा आता है हर वक्त मार्क्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक Mocks- चीज है कि मॉक के टेस्ट का ना, there are two things. One, time. तो प्रेशर जो 3 घंटे में पेपर देना होता है मॉक में भी, वो जोन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या और दूसरा ये कि आईआईटी का चेकिंग सिस्टम बहुत सब्जेक्टिव है एंड एनआईटी का भी बहुत सब्जेक्टिव है। True. So these people who are putting the mocks, the feedback or whatever they give you, don't take that very seriously. अच्छा है तो don't get too overconfident, और बुरा है तो don't get demotivated. It's subjective. Like even the examiner, what Sustovan makes and I make and Mukta makes, one examiner will have 3 different opinions, and the same thing applies for, ये इसमें भी अप्लाई करता है कि अगर किसी 3 अलग अलग एग्जामिनर ने चेक किया तो तीनों को ना बंदे का अलग लगेगा सब। राइट, तो वो मेरे को थोड़ा मॉक का थोड़ा सा झोल लगता है कि मॉक इज जस्ट फॉर द प्रेशर, द टाइम कंस्ट्रेंट एंड गेटिंग इन द जोन ऑफ द एग्जाम। 9 to 12 दो मॉक लास्ट 10 दिन में, तो सुबह उठ के वो एग्जाम देने का एंग्जाइटी निकल जाएगा पूरा। राइट। मैं बताऊं अवित, मॉक में ना खुद को तुम एनालाइज क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो तुम्हारा सर जो है जो चेक कर रहा है मॉक का, उसका कोई फीडबैक तुमको अच्छे से मिलता नहीं कि ये मैंने सोचा जिसके लिए तुमको इतना कम मार्क्स थे, ये मैंने सोचा जिसके लिए मैं तुमको ज्यादा मार्क्स थे। अगर ये होता है दैट मींस यू हैव अ गाइड हु इज गाइडिंग और एनालाइजिंग द मॉक स्कोर। बट क्या होता है ना, अगर हम लोग बेसिकली इन द ऑनलाइन बिजनेस इट हैपेंस कि तुमको ऑन मॉक दिया, मार्क्स मिला और तुम पढ़ गए एकदम प्रॉब्लम में कि भाई क्यों मिला इतना कम या फिर क्यों मिला सर। तो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, कि ये मॉक दिया, अब तुम बताओ तुमको क्या लग रहा है, डू यू हैव एनी ओपिनियन टू गिव, उसमें ज्यादा ध्यान दो मॉक से ज्यादा। अगर तुमको प्रिविलेजेस है कि मॉक का जो पेपर है उसका जो आंसर शीट है वो सर के साथ तुम डिस्कस कर सकते हो कि सर क्यों गलत हो गया, that is good. Unless don't give too much importance to mock. It's just to make you aware of the time frame or and to give you variety of questions more than the previous year papers. बस इतना। ये लोग वही करते हैं, अभी तो सब मॉक देते हैं, दिन मेरे पीछे पढ़ते हैं, मीटिंग सेटअप करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन आंसर मेरे को बताते हैं, लाइक रिव्यू करो एंड टेल अस इसमें कम क्यों मिला, ज्यादा क्यों मिला। राइट, ऐसे ही करना चाहिए। 1 to 1। हाँ, और किसको क्या क्वेश्चन है पूछो। गणेश का क्वेश्चन था। हे हाय, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली था एसडीएम के लिए क्या पढ़ना है, और लाइक आई हैव बीन गोइंग थ्रू एसडीएम एनआईडी के पोर्टफोलियोज, और क्या करना है, लाइक और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे मतलब और क्या रिसोर्स कहाँ से कलेक्ट करना है। देख यार, मैं सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को एसडीएम मिला ना, आई वाज डेड श्योर आई विल गेट इनटू एसडीएम बिकॉज़ ऑफ 2 थिंग्स। वन वाज द क्वेश्चंस that you answer in the exam, they needed technical terminologies. So portfolios go through करके what you can learn is the technical terms. Things like value proposition canvas. वो एक term है जो question number 1 था STM का, red ocean strategy. Things like that. So portfolio उसके लिए है. So terms सीख लो. दूसरा, थोड़ा business edge चाहिए. You need to be a little entrepreneurial. You need a little bit of क्या बोलते हैं, गुज्जू माइंडसेट है, जिससे थोड़ा क्वेश्चंस में जुगाड़ लगा सकते हो, सॉल्यूशन में थोड़ा क्या बोलते हैं, मिर्ची होना चाहिए कि तुमने कुछ दिमाग लगाया है, बिजनेस एज। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो
प्रिपरेशन के लिए टू बी रियली ऑनेस्ट देयर इज नो रिसोर्स एसडीएम का, नो रिसोर्स. आई सॉ द क्वेश्चंस आल्सो, किसी ने न्यू मीडिया लैब का पूछा है, न्यू मीडिया और डिजाइन का. देयर इज नो रिसोर्स, कोई रिसोर्स नहीं. इट्स जस्ट गो टू द पोर्टफोलियो, सी द काइंड ऑफ वर्क, सी द डोमेन्स. कुछ मिला उसको कॉपी पेस्ट गूगल. See, become an expert at Googling. And Googling is a fucking skill. Yeah, It's a skill. one good YouTubing is a skill. True. Learn that skill. And you'll kill anything. कोई भी नया सॉफ्टवेयर सीखना है, नया कॉन्सेप्ट सीखना है, मतलब Googling is the best. But you have to know how to Google, how to YouTube. या लाइक मुझे पोर्टफोलियो में मिले 2-3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिले, टूल्स मिले, लाइक डिजाइन प्रोसेस के अंदर जो टूल्स यूज करते हैं वो मिले मुझे, तो भी मैं थोड़ा गूगल करा, मैंने भी देखा थोड़ा. बट मुझे लग रहा है कि यार ये तो मतलब ये तो कुछ भी नहीं है. एग्जाम में और कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर उसके लिए कैसे मतलब प्रिपेयर करना है, इसके लिए फिर आई वेंट फॉर दिस क्वेश्चन. See, you will not. I also didn't know the first question. Reduction strategy. मैं ठोक क्या है, कुछ भी, मतलब मैंने उसमें क्या किया पता है? Smartly, I put in my own terms. Customer acquisition cost और बड़ी चीजें, और इसका वो आंसर था नहीं, कुछ भलता ही था. बट मैं लिखा, बोले ठीक है, एग्जामिनर को पता तो चले कि ये तो आता है, चल ये नहीं आता, ये तो आता है. तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ता है. तुमको हर चीज नहीं आएगी, वो जो पूछते हो तुमको हर चीज नहीं आएगी. और दिस इज नॉट जस्ट फॉर एसडीएम, इट्स फॉर यूनिवर्सल, इट्स फॉर एवरीथिंग. हर चीज नहीं आएगी यार. थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्टनेस इज द की. स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ता है. एंड लास्ट थिंग, एसडीएम में लाइक कुछ ड्रॉ वगैरह करने के लिए बोला था लास्ट ईयर. हाँ, पोस्टर आया था, पोस्टर था, आइकॉन्स थे, और नहीं ज्यादा नहीं आता एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स. वी हैड 3 राइटिंग आंसर्स, 1000 वर्ड, 900 वर्ड, 500 वर्ड. ओके. एंड कलरिंग का तो सवाल नहीं, फिर कोई कलर्स तो यूज ही नहीं, क्योंकि आई एम वर्स्ट इन कलर्स. इसके लिए मैं लाइफ में कभी कलर किया ही नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं. एग्जैक्टली सेम. टच भी नहीं किया, कभी नहीं. बीआई डेज में पीछे पड़ते थे सब लोग, इसके कलर करना. अरे कौन करेगा कलर? हाँ, कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं 2020 में ज्यादा कलर करके आया था एग्जाम में जितना 2021 में किया. या ओके, थैंक्स. सुनीता को कोई लंबा सा क्वेश्चन है, पूछ ले यार, मैं पढ़ूंगा नहीं. हाय. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉरी मेरा बहन बहुत आवाज कर रहा है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी बस 1 महीना बच्चे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है बहुत प्रेशर मतलब लग रहा है. और जो मतलब जैसे ड्राइंग कर रही थी इतने दिनों से, जैसा प्रोसेस में चल रही थी, ऐसा हो रहा है कि जो आता है वो भी नहीं हो रहा है, जो करने को इंटरेस्ट मुझे लगता है वो भी नहीं हो रहा है मुझसे. तो ऐसे 2-3 दिन वेस्ट जा, फिर से कुछ करके खुद को मतलब करने की ट्राई कर रही हूँ. तो इससे कैसे डील करना है? ऐसा होता है कभी कभी यार, डोंट वरी. मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है. या तुमको लग रहा है टाइम भी निकला जा रहा है, काम भी नहीं हो रहा है. हाँ. या तो ये बिल्डअप होता है, ये लूप बन जाता है एक. ठीक है, तुम काम नहीं करते, तुमको लगता है मन नहीं कर रहा है, फिर एक दिन निकल जाता है, फिर लगता है काम नहीं हुआ, उसका प्रेशर उसके ऊपर, फिर नहीं लगता बहुत प्रेशर काम. ऑल राइट. ठीक है, ये एक पैटर्न बन जाता है जिसको तुमको रिकॉग्नाइज करना है. एंड फॉर दैट आई विल टेल यू, जस्ट सिट ऑन योर चेयर, just take some object and start drawing. Simple काम करो, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है. बस बैठो, कुछ एक लो, ड्रॉ करो, कोई रेफरेंस देखो, ड्रॉ करो. बस मन को थोड़ा हल्का करो. ये प्रेशर में ऐसे होता है. और एक क्वेश्चन है, मेरा पार्ट ए को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है. हाँ, ये मैक्सिमम लोगों का होता है, पार्ट ए को लेके ज्यादा टेंशन. जो बहुत कुछ कर लेते हैं उसको भी होता है टेंशन. ठीक है, पार्ट ए में क्या बताऊं, देखो तुमको थोड़ा अवेयर रहना होता है, कॉन्शियस रहना होता है, क्योंकि वो आ सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये भी सोचो जितना डिफिकल्ट आएगा कट ऑफ भी उस हिसाब से रहता है. सो डोंट वरी कि बहुत टफ आ गया, तुम कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारा रैंक नहीं आएगा. ठीक है, मेरा 2020 में पार्ट ए का रैंक 40 आया था. मेरा 2021 में पार्ट ए का रैंक 41 ऐसे कुछ आया था. सेम, मतलब आई स्कोर्ड 52 both in 2020 and 2021. On 2020 I got 111 rank,
sorry, 112 rank. On 2021, I got 44. That difference is just the cutoff. And the cutoff difference how tough the question paper is. So ये सब बोल के अपने आप को ये कर लो कि हो जाएगा मतलब अगर डिफिकल्ट आता भी है तो कटअप विल बी लेस. ठीक है, पार्ट है आपको प्रैक्टिस करो बस, क्या ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि सब विजुअल आता है. कुछ तुमको मैथ स्किल विल उतना अगर तुम नहीं भी करते, मैं पता है क्या, वो जो क्वेश्चन आता है ना जहाँ पर मैथमेटिकल न्यूमेरिकल आंसर लिखना होता है कि 7 मैं 1-2 किया था शायद से भी, वो मुझे याद भी नहीं. हाँ नेट वाला वो मैं किया भी नहीं था अच्छे से, 2-1 किया था. तो क्या ठीक है, तुमको हर विजुअल वाला तो एटलीस्ट करो. जब तुमको विजुअल वाला में तुम कुछ बोल नहीं सकते. हाँ मतलब वो करने के बाद भी डाउट रह जाता है, फिर वो तब वो गलत हो जाता है कभी कभी, वही प्रॉब्लम अवेयर रहना होता है. वो विजुअल वाले में अवेयरनेस इज मस्ट. ठीक है, विजुअल वाले में अवेयर रहना, क्योंकि तुमको पता हुआ चीज तुम गलत करके आते हो. मैंने भी किया, एक शैडो वाला क्वेश्चन था 2021 में, मेरे को बाद में लग रहा है मतलब शिट, मतलब दीवार में तो मतलब लग रहा है कि मारू की मतलब ये गलती करके आ गया. कुछ भी मतलब होता है. थोड़ा शांत रहो. ठीक है, अच्छे से दिखता है क्वेश्चन. बहुत एक्साइटेड रहोगे ना तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा अच्छे. और फिर वो गलती करके आओगे तब सीट 2021 से बाहर निकल के यार क्या इजी क्वेश्चन था, ताजमहल था उसका. वो ताजमहल नहीं था. हेलो इधर वो ताजमहल नहीं था. समझना सबके लिए सबको सेम हुआ है. ताजमहल सोच के सब आगरा कर दिए. Basically everyone is in the same boat. Okay, सबको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है. It's not like कि तुम्हें बहुत ज्यादा हो रहा है सब चिल है, ऐसा नहीं होता. So it's fine. Even if you take 1-2 days off and not do any design, it's fine. Just that makes it for a good story to tell. नहीं, that makes it for a good story to tell people ना. उसको रखो, कुछ होता है कहानी लोगों के लिए बताने को. अच्छा, कोलकाता में सेंटर कहाँ पे आता है? कोलकाता में एनआईडी का सेंटर आता है, कोई एक बिजनेस मैनेजमेंट. एनआईडी नहीं, सीड का आता है गीतांजलि, टीसीएस गीतांजलि में. अच्छा बहुत सही है. इतना गंदा आता है. उधर भी टीसीएस है. बॉम्बे में भी टीसीएस है. इधर का जो टेक पार्क है जहाँ पे टीसीएस एक के बाद एक सब है, वहाँ पे टीसीएस में आता है. गुड आर्किटेक्चर, यू विल लव द प्लेस. Shoshovan, it's TCS Gitobitan. Oh, sorry, Gitanjali, I said it's Gitobitan, right? आप लोग क्या बता रही थी? एक मिनट एक आस्क माय क्वेश्चन. हाँ यार, आप 3 लोग अब यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन लोगों ने क्लियर किया. तो मैं पर्सनली पूछना चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम में पार्ट बी में जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो क्लीनलीनेस, जैसे मेरे स्केचेस में क्लीनलीनेस मुझे लगता है कि अच्छा, मतलब फर्स्ट लुक में जब देखो तो काफी खराब दिख रहे हैं. सॉरी. तो पर्सनली अगर खुद का एक्सपीरियंस से आप लोग बताओ कि क्लीनलीनेस या फर्स्ट लुक में जो दिखता है ना काफी अच्छा सा, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या वो कितना वो इम्पोर्टेंस रखेगा. देखो, क्लीनलीनेस शोज योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, मतलब तुम अगर बार-बार एक लाइन को दे रहे हो, दैट मींस यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर लाइन. ठीक है, तो क्लीनलीनेस इज रियली इंपॉर्टेंट. तुम अगर बाद में इरेज भी करोगे तो इट्स ऑल राइट टू इरेज, बट दिख जाता है. तो ट्राई टू गेट द हैंग आउट ऑफ इट कि तुमको एक लाइन को अच्छे बनाने के लिए बार-बार देना है. ट्राई टू गेट द कॉन्फिडेंस जहाँ पे तुम एक स्ट्रोक दे रहे हो एंड इट इज फाइनल. तुमको खुद वो फील होगा वो पॉइंट पे तुम जब आओगे कि नहीं मेरे को हो रहा है. इफ आई एम गेटिंग द लाइन इन फर्स्ट गो, इट्स गुड. क्लीनलीनेस मींस नीटनेस. वो उल्टा सीधा हाँ वो मत करो, ट्राई करो, वो एकदम मत करो. It should look like a good page. Yeah, so first look is it's also about the composition. So if you are like given a question about some storyboard kind of thing, you have to make it in such a manner that you can execute the story without any words in a proper manner. It looks like well planned. Even if you have done it in 10 minutes, it should look like it is well planned. So you need to practice on that as well, like how you are executing things.
Yes, like one of my friend told like कि I तो fixed, मेरा तो fixed है कि like I would draw 3 photo. You know, Sarthak said that, Danish. So like I will do 3-4 sketches. You know, one form ideation here, one main photo here, 2 e-news छोटा छोटा here. उसका composition fixed था पेज में कि वो क्या करने जा रहा है. ठीक है, इधर एक मेन फोटो आएगा प्रोडक्ट का, उसका अगर फीचर वगैरह दिखाना है तो इधर दिखाएगा. एक टेम्पलेट सेट था उसका. हाँ, तो अब जो प्रोडक्ट आएगा you will just use the same composition, क्योंकि तुम्हारा वहां पे सोचने का टाइम तो ज्यादा नहीं है ना. तो तुम भी एक काम करो, do that one, like make a composition of 3-2 squares and all, कि इधर पे मैं ऐसे रफ फिट करूंगा चीजों को. तो वो हो गया composition, and then improve your sketching neatness also. गंदा दिखना नहीं चाहिए. हाथ के नीचे पेपर रख लो अगर चाहे तो. तुम अगर हाथ लग रहा है बहुत ज्यादा पेपर पे तो यूज सॉरी हाँ पेपर अंडर योर हैंड पाम, सॉरी, तो गंदा नहीं होगा. कर सकते हो. क्लीनलीनेस मैटर्स, थोड़ा तो मैटर करता है. Okay. No, I don't think you're allowed extra paper. Yeah, you're allowed. You need to. You are. It was given, you're not allowed in this. I got so many suggestions कि like जो एक्स्ट्रा पेपर मिलते हैं उसको खत्म करके आओ. That means ये लगे कि तुम काम करते हो. तुमको पता है क्वेश्चन पेपर खत्म होने के बाद मैं रफ शीट भर रहा हूँ कि कुछ तो कह रहा है. नहीं बट ये जुगाड़ मैं लगा था, तो मैंने इन लोगों को बोल के रखा है कि ना प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो प्रोडक्ट बना के फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं ना पूरे आजू बाजू कॉर्नर वॉर्नर ऊपर नीचे जबरदस्ती फॉर्म आइडेशन बना के आता था. तो एग्जामिनर को लगा कि पहले भाई ने फॉर्म आइडेशन बनाया, बहुत सोचा है और फिर प्रोडक्ट बनाया. ये रिवर्स साइकिल मैंने ये जुगाड़ यूज किया. और बताओ तो मैं चैट में क्वेश्चंस खत्म हो गए. और किसी को है तो पूछो. हाय दिनेश. सो एसडीएम में लास्ट टाइम वो एक रैट वाला क्वेश्चन था, तो वैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, और आपने उसमें आंसर क्या लिखा था? मतलब उसमें आई गेस 3 प्रॉब्लम्स बताने थे, तो फिर वो तो रैट वाला क्वेश्चन ये था कि दो तो रैट वाला क्वेश्चन ये था कि 2 जार्स थे और दोनों जार के अंदर खाना था. एक में 10% खाना था, एक में 90% फुल था जार. एंड एक में चूहा बैठा था अंदर जार के खाने के ऊपर, एक में चूहा बैठा था जार के ऊपर खाने पे. तो यू हैव टू राइट अ बिजनेस स्ट्रेटजी. एक बिजनेस स्ट्रेटजी बना के लिखा. ये क्वेश्चन ना, या ये टॉकिंग अबाउट द सेम क्वेश्चन है? यस. तो इसमें मैंने आंसर ये किया था, आई टुक इट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, दैट बिजनेसेस हैव टू हैव a risk preparation strategy while executing business decisions. उसमें मैंने ये लिखा था कि जो एड अंदर बैठा है वो हाई रिस्क पे चल रहा है, तो उसके इन्वेस्टमेंट जहाँ होंगे, जहाँ मार्केट क्रैश होने के चांसेस है, वहाँ ये पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और लिस्टिंग्स है. और मैं दूसरे जार पे लिखा था कि जो जार में है जहाँ पे खाना पूरा भरा हुआ है, उसमें सेफ ऑप्शंस में, फ्यूचर ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ पे या तो शॉर्ट रिटर्न्स है या तो लॉस जीरो है. So I had completely made it like a what do you say? मैंने रिस्क पे खेला था पूरा. वो रिस्क के ऊपर ही था पूरा आंसर मेरा कि हाउ डू बिजनेसेस where do you invest. ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सी वन चीज है, इसके मैं एक चीज का पैटर्न नोटिस किया मैंने पहले ही होता. There's going to be one that allowed you to show off. What do I mean by to allow you to whatever. Danish, you are not audible actually. सिर्फ allowed सुनाई दे रहा है. Am I audible now? Yeah. हाँ, sorry. So STM में पैटर्न है कि जितने भी लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैं सबसे बात की थी, so they will give you 2 questions, 1 or 2 that are open ended and you can push in your own knowledge. मतलब तुम अपना नॉलेज शो ऑफ कर सकते हो. शो ऑफ का मतलब ये है कि मेरे को रिस्क स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता है. मेरे को ग्रीन टी सिस्टम पता है, मेरे को एक ब्लैक वाटर कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग वाला, वो एक अलग है. तो वो सब चीजें मेरे को पता है. तो दिस क्वेश्चन आई यूज्ड टू शो ऑफ माय नॉलेज. यू विल आल्सो गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट. सो तुमको जो नॉलेज है ना, वो तुमको घुसाना अंदर जबरदस्ती एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि मेरे को ये सब भी आता है. भले पूछा नहीं,
throwing stuff out. हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप खुद का जो इंडिविजुअलिटी ग्रो करते हो ना, वो दिखाने का मौका तुमको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा. So make sure you do that because then the examiner see who you are. Basically. Yes, and I have one more पोस्टर question. के साथ Yeah. हाँ, तो पोस्टर के साथ भी ना ऐसे लिखता था. उधर भी मैंने जबरदस्ती शार्क टैंक का पूरा जितना देखा है लाइफ में शार्क टैंक सब डाल दिया. रॉयल्टी डील्स, इक्विटी डील्स, अगर $1 रॉयल्टी होता है तो उसका रिटर्न कितना मिलता है 1 साल में 2 साल में. अरे भाई जितना शार्क टैंक देख रहा है लाइफ में सब डाल दिया था वो क्वेश्चन. ये जबरदस्ती बिजनेस वाइज दिखाओगे ना तो उनको समझ जाएगा कि इसको आता है. चल पोस्टर ओके बना है, मेरा ड्राइंग तो बहुत वीक था बट एटलीस्ट नॉलेज है. Yes. बास्केट सोवन का बास्केट वाला आंसर क्या रे? इतना है तो कितना डालोगे जो चाहिए बनाओ. तो सोवन इसका डिजाइन मेथडोलॉजी बना ले, ये बास्केट वाला कांसेप्ट. हाँ, मेक इट अ डिजाइन मेथड. you have to be very conscious कि तुम क्या डाल रहे हो अपने में. Don't be confused. Yes, और I have one more question. Like in seed we have a creativity वाला question जिसमें हमें doodle बनाना होता है. तो फिर उसे कैप्शन कैसे करें? Like for instance, मैंने एक पर्स बनाई है, तो फिर उसको तो मैं कैप्शन कर सकती हूँ लेदर पर्स या फिर कोई भी बैम्बू फैब्रिक पर्स, या फिर ऐसे कैप्शन कर सकती हूँ कि लेट्स फाइंड माय पर्स और वेयर इज माय पर्स. तो कैसे कैप्शन करना, या सिर्फ पर्स कैप्शन करना, या फिर कैप्शन कैसे करना है ना, लाइक हो सकता है, मतलब देखो हर किसी का सोचने का टाइप अलग है. It's कोई more फोटो like individual style. हाँ, मैं कोई उसे फोटो लिखती where the money goes. Simple, something like that. या कुछ भी. yes. समथिंग विटी और समथिंग पता है सार्कास्टिक. मेरा मतलब हमारा एक सर है, या सॉरी बता रहे. हाँ बोल. हमारा जो एक सर है, वो सर मतलब वर्ड्स को लेके बहुत सीरियस है. लाइक whenever he is taking lectures, he is writing words alongside, and at the end we presented, sir said okay, you got good words in the presentation, this thing and this thing, what do you mean by this and that. So there are people who are focused more on words, there are people who focus more on pictures. ठीक है, तो तुम कैप्शन बनाओ अगर तुमको लगता है your words are important to you. उतना ध्यान मत दो अगर तुमको लगता है कि कैप्शन चलो ठीक है, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा. बट थोड़ा वो क्या मैटर करता है. एक सर थे यहाँ पे, ही इज ऑलवेज हिटिंग अहेड. चॉइस क्या होता है? ऑल्टरनेटिव बोलो, ऑल्टरनेटिव. स्ट्रगल क्या होता है? पर्सिवरेंस बोलो, पर्सिवरेंस. मतलब ही इज फोकस्ड ऑन दिस बिग वर्ड्स. तो वो कभी-कभी ना मैटर करता है. Yes. Thank you so much. Anybody else? Oh, we are done for the day. 2.5 घंटा हो गया. मेरे को पता था ये भी 2 घंटा के ऊपर खींचेगा. या भाई अपना खुद का स्टोरी लिखो अभी. ठीक है, अपना जिंदगी का like there is a concept of 5-minute journal. Do you know that? Okay, research on that 5-minute journal concept. Write every day what 3 things happen good to you. Any small things that happen good to you. Start observing the small things that make you happy. छोटा चीज है कि you got the ice cream not melted in your hands. It can also be a happy thing for you. ठीक है, it can also have a power to make a story out of it. कि तुम्हारा हाथ में आइसक्रीम didn't melt. क्या बात है. हाँ, अच्छा वो हाँ, write 3 things about your day. क्या अच्छा हुआ एक दिन में, बस.
don't focus on it, huh? Don't focus on it. जो होगा तुम्हारे हाथ में It नहीं जाएगा. really doesn't matter because हाँ. they want people who are very different. In the whole class, we have like so much of like diversity in like every person is different. Every person has different activities. Everyone has like different personality. So they want that kind of diversity. So it doesn't really matter. हाँ. But तुमको अगर It's अपना too negative story or something like that. हाँ. अगर पर्सनालिटी चेंज करना है, That अगर is पॉजिटिव different. बनना है, तो करो. So one is in satsang mode. अगर सत्संग किसी को ब्रेकअप से बाहर निकालना है, वो वाला चीज तो philosophically चलेगा ऐसे समझ लो. What 3 things that happened good to you in the day? Because you become a better human. That is so correct. Yeah. Yes. Good to have the discussion. Anybody else? We are done. Yeah. Thank you, Susavan, and thank you, Thank you. Mugdha. When I upload this on YouTube, I'm going to put it like Susavan Gupta FT feet Mugdha. Dhanisha, Susovan, thank you so much for this beautiful session. Anytime. Thank you for joining. Thank you, guys. Susavan, thank you. I know. Kind of pulled me unexpectedly in this, but yeah. I'm going to put music video था ना. Divine feet, Rani. वैसे Susavan feet Mugdha. She entered. Teacher. हाँ आशी. Hi Ashi. आशी कहाँ थी? I missed you. अरे सर मैंने देखा ही नहीं, मीटिंग की लिंक ही नहीं देखी थी. कितने क्वेश्चन पूछते हैं हर बार. आज कुछ नहीं पूछा, मेरा क्या हो गया इसको. पूछ ले, तू कोटा पूरा कर ले. न्यू मीडिया डिजाइन क्या सॉरी डिजाइन रिटेल एक्सपीरियंस और मैं मतलब अभी 1 महीना है तो कैसे मैं थोड़ा सा उसको कैचअप करूं. इसके लिए Anybody has? इसके लिए डिजाइन रिटेल एक्सपीरियंस. retail experience. Okay, retail experience. I don't know. You know what I can tell you from my experience is you go to retail shops. Okay, early जाओ, जल्दी जाओ, ठीक है, देर मत करो. तो जब सुबह पहला ओपन होता है ना रिटेल शॉप्स, तो people are there like retail managers. They arrange products. They show some products in the front row. Then they they arrange. So talk to them. How they think. What are they showing basically and why? What is the new collection that they are trying to show in the doorways? So that will help. Go and study the retail design. Like retail design in that sense कि तुम कोई Reliance के mall में चले गए या फिर कोई Spencer's में mall में चले गए. How they are showing the thing. What is catching your eye and why? Study those. Talk to their retail manager. Retail का manager रहता है उधर, ठीक है, कि कौन किधर क्या रखेगा, वो they direct that. अच्छा, तो मतलब ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी पे बेस्ड पे आएंगे. हेलो, I missed something. Yeah, can you tell? एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी बेस्ड आते हैं कि कैसे स्पेस डिजाइन करना है. देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो ना मुझे पता ना किसी को पता है, ठीक है. बस मैं बोल सकता हूँ कि तुम कैसे अपना मेंटालिटी को प्रिपेयर कर सकते हो. ओके. और ग्राफिक डिजाइन के लिए मतलब ग्राफिक डिजाइन में खाली पोस्टर और लोगो ही पता है, बाकी तो मतलब पता ही नहीं क्या आ सकता है या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं. हो सकता है तुमको अगर प्रोसेस दिखाना है कि चीजें कैसे बन रहा है, कि चाय कैसे बन रहा है, या फिर तुम पेंसिल कैसे शार्पन कर रहे हो. लाइक वी हैड अ क्वेश्चन कि पेपर फोल्ड करके तो बोर्ड कैसे बनाना है, यू हैव टू शो इट ग्राफिकली. इस तरह क्वेश्चन आता है. ठीक है, थैंक यू. You basically need to know the basics of the stream that you have chosen. Okay, so like if you're saying retail and all, you need to know the basics of what it is and how it's done and everything like that. So they would ask you questions similar to that. They don't expect you to know everything before you start the course itself, obviously. So learn the basics. Okay. Thank you. भैया मुझे कुछ पूछना है. हाँ पूछो ना. पूरा आज से कैसे स्टार्ट किया मुद्दा? मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो आपका बैचलर्स कहाँ से हुआ मुझे पता नहीं है.
Bachelor's, I'm a civil engineer, you know. Like my bachelor was in civil, and Magda is. भैया एक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है मेरा थोड़ा सा। अगर एनआईडी या आईआईटी में या गवर्नमेंट में नहीं होता है तो मेरे पास अप्लाइड आर्ट्स बैकग्राउंड है, तो क्या ऑप्शंस हैं जो उसके लिए अगर मेरे को डिजाइनिंग में जॉब करनी है तो? I'm not the right person to tell you all this, you know. Like applied, मेरा एक दोस्त है, you know, उसको पूछ सकते हैं। मतलब तुम्हारा सीनियर ज्यादा अच्छे बोल सकते हैं मेरे से। तुम्हारा अगर डिग्री है अप्लाइड में, तो they can help you better than me because I have no experience. तो भैया मैं यही पूछ रहा था, मेरा भी जैसे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड है, तो मतलब मैं भी अभी यूनिवर्सल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब कैसे क्या, मतलब प्रोडक्ट ही ज्यादातर आते हैं उसमें भी, तो वही अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें तो अलग अलग कैटेगरी, मतलब वही क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ मतलब पर्सन है उसको ये बीमारी है या लाइक वो डिसेबल है, तो मतलब प्रैक्टिस कैसे करें? मतलब हम तो अभी नॉर्मल वगैरह ही करते हैं प्रैक्टिस अभी भी, तो आपने मतलब कैसा किया था? मैं देखो नॉर्मल प्रोडक्ट डिजाइन की जो प्रैक्टिस था मैंने वही किया था, उसके साथ साथ एडिशनल मैंने कुछ नॉलेज जो यूनिवर्सल में रहता है, बेसिकली वही यूनिवर्सल में यू हैव टू स्टडी आर्किटेक्चरल स्टडी की डोर हैंडल कौन से हाइट में बन रहा है ताकि कोई शॉर्ट हाइट वाला भी एक्सेस कर पाए, लॉन्ग हाइट वाला भी एक्सेस कर पाए, वेयर यू शुड पुट द आई होल। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये थॉट्स है ना जो लोग बनाते हैं सोचने के बाद, तो ये थॉट्स को देखो, क्योंकि ये जो रैंप हो रहा है, सीढ़ियों के साथ साथ रैंप रख रहा है, क्यों रख रहा है, ठीक है, ये और फिर ये तुम सीढ़ी मतलब जो स्टेयर्स में रेलिंग है, व्हाट काइंड ऑफ रेलिंग यू कैन यूज टू होल्ड और लाइक दैट काइंड ऑफ थॉट। तुमको पहले वो आर्किटेक्चर मतलब नेट पे सर्च करके देखना है कि यूनिवर्सल डिजाइन के रिलेटेड क्या क्या वीडियो है। हाँ बुक्स ना, बुक्स मेरे को नहीं पता है। ओके, मींस आपने मतलब आपने स्केचिंग पार्ट ज्यादा प्रैक्टिस की थी या मतलब नॉर्मल जो पार्ट ए के लिए पढ़ा था? बोथ यू हैव टू हैव बोथ। हाँ, ऐसे एक में तुम कंसंट्रेट करके नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ स्ट्रेंथ है कुछ वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग करो और वीकनेसेस को come to a point where it is not anymore your like weakness. आपका एनआईडी है ना अभी, मतलब मुझको पता नहीं है। मैं अभी आईडीसी में। अच्छा, सॉरी, थैंक यू। भाई बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका एनआईडी में ओनली रैंक 1 2 फील्ड में आता है और वो आईआईटी लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे 10 साल में एक। अरे क्या बताऊं यार, वो अलग कंफ्यूजन था आईआईटी एनआईडी वाला। हाँ बट मेरे को भी एक्चुअली जानना है सिसोवन, लास्ट 5 मिनट्स देख तुझे अल्टीमेट व्हाट वाज योर थॉट? हेड एंड टेल करना है, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। हेड एंड टेल और क्या आईआईटी एनआईडी में क्या चूज करेगा तू? दिमाग क्या लगाएगा, किस में लगाएगा? प्रोफेसर से क्वालिटी सेम है, एक्सपोजर सेम है, सब सेम है। आई जस्ट टुक आईआईटी बिकॉज़ आई लव मोर of a controlled approach जहाँ पे I can use my engineering you know or knowledge also. In NID में it's more about you know like focusing on the like design forms and then you know like trying to get something out of it. Redesign ज़्यादा होता है NID में, they play with the light part of product. कैसे हो रहा है, सपोज कर तुझे लाइट बनाना है तो IIT का क्या अप्रोच होगा? IIT बनाएगा कि एक रूरल एरिया की लाइट के लिए लाइट जो इजी टू मैन्युफैक्चरेबल होगा, जिसके लिए ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा या बैटरी से ज्यादा टाइम तक चलेगा, ये होगा आईआईटी वाला अप्रोच। एनआईटी क्या करेगा? एनआईटी करेगा एक मतलब एक लाइट जो कि कुछ अलग तरह का दिखता है, सब सपोज एक माउस की तरह सपोज दिख रहा है लाइट, या फिर एक लाइट जो कि तो अपना लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर अटैच कर सकता है टू राइट समथिंग ऑन द डेस्क, ठीक है। तो ये अलग है, मतलब द यूजर इज डिफरेंट इन केस ऑफ आईआईटी एंड एनआईटी। ऐसा नहीं कि एनआईटी नहीं करता है, बट मोस्टली द वे देयर ब्रेन इज पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस इन एनआईटी। आईआईटी में थोड़ा सा you get a blinder, घोड़ों को मिलता है। that is because of the approach they are really work। मेरा सिंपल था, I have to work for my country kind of, मतलब कुछ बना हुआ है फिर कुछ लाइक अगर वीके चक्रवर्ती सर का अगर तू वो देखेगा ना,
वो जो It's NPTEL more वाला government focused basically, IDC. that is very like inspirational यार. मतलब you are really working from the needy people. Policeman के लिए काम कर रहा है, जवानों के लिए काम कर रहा है, तो I like to do something like that. यहाँ पे भी है ऐसा, मतलब रिक्शा वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो स्टार्ट कैसे हुआ पता है? I had to live a day in the life of a रिक्शा वाला. तो मैंने 40 किलोमीटर वो साइकिल वाला रिक्शा चलाया, पैसेंजर्स लेके कैंपस के अंदर 40 किलोमीटर. मैंने 280 रुपए कमाए, 280 रुपीज. और इतना आई प्यूक ट्वाइस, क्योंकि जब 3 पैसेंजर बिठा है ना, there's a slope from the main building to the canteen. उधर चढ़ाना साइकिल भाई, I then realized कि भाई इतना दिक्कत है. So then the design brief changed to designing something for these people ताकि उनका मेहनत कम हो. तो एक केस स्टडी बन गया. Right. तो मेरे को वो पसंद है यहाँ का, कि बहुत Yeah, that is यूएल पे right. फोकस्ड है. बहुत गवर्नमेंटल चीजें होती है, आर्मी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. यूएल इंडिया में डिजाइन थिंकिंग हिंदी में सिखाना, अब मैं वो कर रहा हूँ. वो भी प्रोजेक्ट मेरे को दिया है, बिकॉज आई टॉक अ लॉट. मेरे पॉडकास्ट करता हूँ. हाँ वही, we know you, how much you talk. Yeah, yes. Awesome. ठीक है. Yeah, चलो. that's awesome, man. Thank you so much, Susaman. I hope you had fun. I hope this was fruitful. मजा आया? बहुत. And thank you, Do you Mugdha, think for joining. Huh? this is helpful for these You guys? kind of played it well, but yeah, okay. एक क्वेश्चन. आजा. जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनकी मतलब थिंकिंग के, क्योंकि काफी ज्यादा वो लोग वो भी हैं, मतलब एक्सपीरियंस लोग हैं और काफी एज्ड भी हैं, तो उनका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ क्या है, मतलब इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म, मतलब क्योंकि हमने अभी कभी डिग नहीं किया ना, हमारे कभी मतलब बहुत वास्ट है, तो उसके ऊपर क्या अप्रोच है उनकी, कि वैसे स्टूडेंट को लेंगे वो, मतलब जो इसका एक्सपीरियंस बना पाए, कि मतलब इस टाइप का कुछ हाँ, समझने का. नहीं करता है. They are very open to understand. There are certain people who are spiritual, there are certain people who are not, but they all are ready to listen. Your thought, your way of thinking, वो देखेगा and they will validate that. Right. हाँ. और आप लोगों की कॉलेज लाइफ कैसी हो रही है, मतलब आप लोग बाहर जा रहे हो या फिर मतलब The हॉस्टल से बाहर background जा is रहे not हो? changing, my dear friend. The background is same for like 6 months. Once the background will change, our experience will change. Like background mean this background. It's been online basically. Yeah. It's a sarcasm that we are online. Say that in chat. आप लोग अभी घर पे हो, कॉलेज में ही हो? घर पे हूँ ना, देखो पीछे देख के समझ में आ जाता है. अच्छा, हॉस्टल में भी बहुत वहाँ वेराइटीज हैं, कोई बोलता है अमीर हॉस्टल, कोई करीब उस टाइप. हॉस्टल में ये ट्रक लगेगा पूरा लेके आने के लिए मेरा चीजें जो है ना घर में. अच्छा, ठीक है. चलो, we need to end it ना. Okay, दानिश. वो खुद चला गया क्या? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अरे हाँ. मैं ये बोला था बीच में कि मैं कॉलेज में हूँ, ऑलमोस्ट सब लोग घर पे है. मेरे बैच में भी सिर्फ 4 लोग आए, वो भी प्रोजेक्ट के लिए, बाकी सब घर पे है. तो तुम लोग को भी जल्दी मिल जाएगा. अरे प्रे कर यार, हर दिन उठ के प्रे कर जाओ. क्या करो? डोंट मिस कैंपस, डोंट मिस. बहुत इम्पोर्टेंट है. हर दिन छोड़ के कैंप प्रे करना दानिश, ठीक है? डन. ओके, ठीक है. चलो, थैंक यू गाइस. वन मोर रिक्वेस्ट इज दैट थैंक यू. पोर्टफोलियो के टाइम पे इफ यू कैन, अगर पोर्टफोलियो के टाइम पे हाँ ठीक टाइम मिलता है तो बिल्कुल. हाँ, एकदम करेंगे, क्यों नहीं. एक बार सेशन वापस करेंगे, पक्का है ना? एकदम. मुग्धा, यू आल्सो प्लीज जॉइन अगर हो सके तो. Yeah, okay. ओके, चलो. बाय गाइस. Bye. थैंक यू सो मच. Bye everyone. And thanks. Bye everyone. Good night. Bye.